थैंक यू सर। मिनट्स पहले तो आप सभी की क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन the new era of Indian film industry, the one and only Dev Gill sir, एक बार जोरदार तालियां guys. The man in action. कौन है आगे? भाई हमारे सारे प्रेस वाले भाई, पहले तो आप सभी का स्वागत है। और आ रही थी तो हम भी थोड़े खौफ में थे, यार कैसा होने वाला है, कैसा होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है जब हम अच्छा कुछ करते हैं तो भगवान भी उसके साथ होता है। तो आप सभी का स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अहो विक्रमार्का, गाइस एक बार जोरदार तालियां for the whole team of अहो विक्रमार्का गाइस। यस, यही जोश बनता है जहां से ये पूरी इंडस्ट्री चलता है। And guys, एक बार जोरदार तालियां for शर्ली चोपड़ा। अरे तालियां बहुत कम बज रही हैं। जरा ग्लैमर का स्वागत कैसा होना चाहिए?
जिंदगी के हर कदम के साथ एसी वाला भी साथ चाहिए। Guys, first time in Marathi industry, Mr. Ravi Basroor, blast, bomb, fire बोलते हैं ना, सिनेमा को दूसरे लेवल पे। Have you seen Salar? Have you seen KGF? He's the man to take the cinema to different level. Media guys all set? जो कुछ भी कोल्हापुर में हुआ है उसके लिए भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप चलो सब भाई लोग मेरे पीछे बैठ जाओ। Lights up.
क्या बात है, जोरदार लगा थोड़ा। देव सर की मॉम यहाँ पर है। किसी ने पूछा कि तुमने कभी भगवान लिखा है, भगवान देखा है? तो इसने क्या खूब जवाब दिया, एक पन्नों पे सारों ने भगवान। एक बार जोरदार तालियां। और ये ट्रेलर है ना, मैं मेरी माता जी के हाथ से रिलीज करना चाहता हूँ, इसलिए आई टुक सो मच टाइम। मम्मा, आर यू रेडी? हाँ, ये फिल्म इस दुनिया में हर एक माता के लिए है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे मेरे माँ के प्रति एक फिल्म बनाने का मौका मिला और आप लोग ये एंजॉय करने वाले हैं। ओके, प्लीज स्टार्ट द ट्रेलर। Anil, once my mother says, please wait for 2 minutes. Please start the trailer. Please start the trailer. My name is Aarti Devinder Gill and I extend a very warm welcome to every one of you on behalf of Team Dev Gill Productions. It is indeed a very, very proud moment for us, a very momentous occasion as we have just launched our trailer for our first film, Aho Vikramarka, whose release we await with bated breath and great excitement. And looking at the mass hysteria here, I'm sure every one of you is doing the same thing, aren't we? Yes? At the outset, apologies for the technical glitches which we had due to the Bharat Bandh today. Extremely sorry that some of you had to wait and we could not start as per schedule. Profound apologies for that. However, all's well that has started well, and I think Dev has got everyone rolling to a great start right outside. You all loved Archana, you loved the motion picture, and you loved the trailer. So, a little bit about our film. Aho Vikramarka is a mass entertainer, an action-packed drama. It's filled with brilliant direction from our impeccable Koti Garu, who has come all the way from Hyderabad. Koti sir is of the school of SS Rajamouli Garu, our legendary director Rajamouli Garu, who has also launched our teaser just a few weeks ago. And if I may say so, I would like to reiterate what Rajamouli sir said just when he saw our teaser. He stood up and he said, "This looks like a work of great blood, sweat and tears." And he said, congratulations to the team and especially to Koti sir for his brilliant direction, which you will all see very soon. Firstly, I would also like to invite on stage from the production team, our producers, Mr. Ashwini Kumar Mishra and Mrs. Aarti Mishra. Please do come and join me. And I would also like to invite Mr. Mihir Kulkarni, who is a producer with us. Mihir ji, please join us on stage. And our wonderful presenters, Ward Wizard Entertainment, without which we couldn't have done so much and who took us further in this journey. So this dream couldn't have been possible without all their support and love. So please, we urge you all to come to the theatres on the 30th of August. Watch our Aho Vikramarka. You have already seen slices of the dashing Vikramarka, and I'm sure he's going to speak more. I will keep that for him. I would like to thank every member of the cast and crew who have really contributed tremendously in our journey. Our family, our friends and well-wishers who have supported and
you know, they have actually taken all our whims and crazy experiences through this journey, especially mummy and the children. And I'd also like to thank the esteemed press and all of you from the media who have been showering your love and blessings on Aho Vikramarka ever since we have started with the first look. Thank you so much for all your love. And we'll see you at the theatres, everyone. Thank you so much. हे आईसाठी डेलिकेट आहे आणि देवनी जेव्हा ही स्टोरी सांगितली आम्हाला अतिशय भाऊक ह्या गोष्टीला आम्ही पडलो. मला वाटतं आम्ही 1.5 ते 2 तासात मीटिंग संपली आणि आम्ही देवबरोबर होतो. बाकी आम्हाला काही माहिती नव्हतं काय आहे काय नाही. पण देवनी जी स्टोरी सांगितली ही आईची आणि मुलाची स्टोरी आहे. नक्कीच महाराष्ट्राच्या बाहेर साऊथमध्ये सगळ्यात मोठं श्रेय असतं ते आईला असतं. आई प्रणाम. ह्या कुठल्याही जगामध्ये आपण तिच्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही ते देवनी दाखवलं. देवनी आज जे काही सगळ्या आयांचं स्वप्न पूर्ण केलं त्याबद्दल देवला धन्यवाद आणि देवसाठी टाळ्या. आणि जे काय आज आमच्या इकडे जे काय सगळे सहकारी आहेत, सगळे सर असू द्या किंवा दीपकजी असू द्या, केडी आहेत इकडे, सुतेजा आहेत, ह्या सगळ्यांचा ह्याचा सहभाग आहे. फक्त आमचा नाही आहे की तुम्ही सगळे ह्यामध्ये सामील व्हा आणि हा सुपर हिट करावा हीच इच्छा आहे आणि देवाकडे हीच प्रार्थना करतो. जय हिंद. Yes, now मिश्रा सर प्लीज. सारे उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और बहुत इमोशनल और नर्वस फील कर रहा हूँ. पिछले 2.5 साल में कभी नहीं किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 2.5 साल हमारा चला लगातार. और सब लोग पूछते थे साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अभी कब रिलीज़ का नंबर आएगा, कब आपका रिलीज़ का नंबर आएगा. और हम लोग कहते थे कि नहीं बस हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी लाएं. और फाइनली आज वो जब मैंने अपना ट्रेलर देखा तो मैं उधर खड़ा होकर बहुत इमोशनल हो गया. तो मैं थोड़ा पीछे चला गया ताकि मेरी आंखों के आंसू ना दिखाई पड़े किसी को. और सबसे बड़ा क्रेडिट इसका किसी को है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मैडनेस की वजह से सब हुआ. वो है मिस्टर देव गिल, मेरा बड़ा भाई है. उसने इतनी मेहनत की कि मैं बता नहीं सकता. कई बार बीमार होते थे, तबीयत ठीक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी शूट हमने ऑन रखा. हम लोग पुणे की एक पहाड़ी पे लास्ट अपना शूट कर रहे थे और मॉर्निंग में होता क्या था कि सुबह 6 बजे एकदम ठंड होती थी. और वो लास्ट फाइट बेयर बॉडी हमारे प्रवीण सर और देवगिल सर की, जो कुछ ग्लिम्स आपने देखे भी, मैं दोनों लोगों को हेड्स ऑफ करता हूँ कि बेयर बॉडी उतनी ठंड में कीचड़ में पानी में लौटते हुए उन्होंने फाइट पूरी की. तो दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से. और तीसरा मैं बोलता हूँ कि बॉम्बे है ये सपनों की नगरी है. और ये बात सच हुई, मेरे जीवन में भी सच हुई. जितने भी लोग फर्स्ट रो में बैठे हैं ज़्यादातर बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आके अपने सपनों को उन्होंने यहाँ आके पूरा किया. और महाराष्ट्र की जो कहते हैं कि जो भूमि है इतनी पावन है कि उसने सबको स्वीकार किया, सबको मौका दिया. हम सबको मौका दिया अपने सपने पूरे करने का. और फाइनली एक सपना हमारा पूरा होने जा रहा है. 2017 में जब मैं बॉम्बे पहली बार आया तो किसी एक व्यक्ति का बहुत आशीर्वाद था और संयोग से वो आज यहाँ उपस्थित हैं. उनको देख के मैं बार बार भावुक हो रहा हूँ. मैं चाहूँगा कि उनसे मैं मिलवाऊँ क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ इनके संग आज खड़े नहीं होते. हमारे मिहिर सर, हमारे वार्ड विराट के सर और बाकी सब इतनी टीम से. तो मैं चाहता हूँ कि एक बार बस मैं उनके दर्शन आप लोग को कराना चाहता हूँ. मेरे गॉड फादर डॉक्टर मनोज सर. जोरदार चलेगा जबर प्लीज कम ऑन. ये मेरे बड़े भाई हैं और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं, बड़ा पद संभालते हैं. और कभी एक रॉ बच्चे को बॉम्बे घूमते हुए इन्होंने देखा था और उसको उठा के इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और आज उसकी वजह से हम लोग ये यहाँ पे खड़े हैं. तो सबसे बड़ा थैंक यू महाराष्ट्र की भूमि का, शिवाजी महाराज का और डॉक्टर संतोष मांडलोस्कर सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. और उसके बाद जितनी भी हमारी टीम है, चाहे औरको सर को देख रहा हूँ, प्रवीण सर को, तेजस्विनी मैडम को,
मैं क्या बोलूँ, मतलब हम लोगों ने क्या है कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तब इसकी शुरुआत सोची थी। तब 2 कैरेक्टर हम लोगों की फर्स्ट नज़र में फाइनल थे। एक तो प्रवीण तरडे सर को हमें लेना ही लेना, नो सेकंड थॉट, नो सेकंड ऑप्शन, और हम लोगों ने बहुत निवेदन किया तब वो तैयार हुए। और दूसरा तेजस्विनी मैडम का था कि जिनको हम लोग के अभिनय की प्रतिभा से वाकिफ़ थे, और मैं ये चाहता था कि ये अगर पैन वर्ल्ड लेवल पे अपनी प्रतिभा दिखाएं तो हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात होगी, और उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट स्वीकार की। तो मैं दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी क्रू, हमारे कोटी गारू हमारे डायरेक्टर हैं। हाँ, दूसरा हमारे सबसे परम प्रिय रवि बसरूर सर बैठे हुए हैं। आपने KGF में उनको देखा, आपने सालार में उनका BGM देखा। पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि सॉन्ग से ज़्यादा किसी का BGM सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया, तो वो सिर्फ रवि बसरूर सर को हमारे जाता है। और हमारी मूवी का भी उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, सॉन्ग दिए, वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखेंगे तो एकदम मंत्र मुग्ध रह जाएंगे कि वाह, मतलब मुंह से वाह ही निकलेगा। हम लोग के साथ तो यही हुआ। तो थैंक यू रवि बसरूर सर, आपने हम लोग की रिक्वेस्ट स्वीकार की और इस फिल्म का पार्ट बने। और बाकी सारे क्रू मेंबर को, स्पेशली कोटी गारू हमारे सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और जितने हमारे को प्रोड्यूसर थे, वो उसमें हुआ क्या कि हम लोगों ने जब पिक्चर स्टार्ट की तो तब कम लोग थे, और बाद में धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कारवां बनता चला गया। तो मैं सबसे ज़्यादा एक और थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे को प्रोड्यूसर्स को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे विज़न को सराहा, और आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द को प्रोड्यूसर्स ऑफ देवगिल प्रोडक्शंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को भी बहुत थैंक यू कि वो आए और पेशेंस फुली हम लोग को सुन रहे हैं अच्छे से। मीडिया को थैंक यू वेरी मच, आप लोग पधारे हमारी रिक्वेस्ट पे। थैंक यू वेरी मच। मीर जी प्लीज। थैंक यू सो मच मीर सर। मला ॲक्च्युली कधी माईकवर बोलायची सवय नाही आहे, पण हा मूवी देवगिलजी जेव्हा माझ्याकडे त्यांनी स्क्रिप्ट वगैरे सगळं सांगितलं त्यावेळेला ते सलाईन लावून आले होते हाताला, आणि जी मेहनत आणि जी लगननी त्यांनी या मूवीमध्ये सगळं एक्झिक्युशन आणि काम केलं आहे, आणि जी स्टारकास्ट आहे प्रवीण सर, तेजस्विनी मॅडम, म्युझिक डायरेक्टर, बॅकग्राऊंड म्युझिक रवी बसरूरजी, तर एवढं सगळं चांगलं या मूवीमध्ये एलिमेंट्स आहेत. तर तुम्ही जरूर हा पिक्चर बघावं, आम्हाला सपोर्ट करा. थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Invite our co-producers who can just come and grace the stage with their presence, please. Some of us are not here, but for those who are there, I will warmly invite them. Mrs. R.V. Mamta Raj ji, please come here. So my brother R.V. Yuvraj is not here today. His presence is immensely missed. His towering presence, if I may say so. Mamta ji will be representing Yuvraj, and she is our family, our support. And she has come all the way from Bangalore. Mrs. Tavade, please. Mr. Shri Krishna Gosavi. Mr. Sudhir Amin. Can we have Mr. Medge? Mrs. Suchita Bhavkar. Bhabhi, please come. कृष्णा मेडगे सर. अरे भैया प्रोड्यूसर लोग हैं, जरा तालियां बजाओ, आंखों में पैसा आ जाता है ऑटोमेटिकली. Mrs. Asha Desai. Mr. Nitin Zavalkar, if you're here. Mr. Tushar Gosavi. And Mr. Sachin. I think some of them couldn't be here because of the Bharat Bandh. Some of them had to travel from Pune, but because of transport glitches and things on the road, it has been a little tough. So welcome Cyrus and Asha.
I request Dave also to come here so that we can all take a picture with everybody. I don't need to introduce Dave, the heart of Dave Gill Productions. And like I like to say, my hero is your hero now. I'd like to request if anybody would like to say a few things. Very very congratulate to all the team and especially Dev sir and especially Ashwini ma'am. ये जो स्टार्ट है बेस मैंने ही देखा है, हमारे घर से ही स्टार्ट हुआ था. सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द टीम. थैंक्स अ लॉट. एंड जो भी ऑडियंस आए हैं, फ्रेंड्स सर्कल आए हैं, प्लीज़ थैंक्स फॉर ऑल द थिंग्स. थैंक यू सो मच. मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मेरा भाई है देव, ऑल द बेस्ट देव. को प्रोड्यूसर सिर्फ बंद कमरे में मेरे साथ झगड़ा करते हैं, यहाँ स्टेज पे बात ही नहीं करते. Namaskara. I am representing from Bangalore, so my language, my mother tongue, Kannada. So today Pan India movie, Aho Vikramarka is being released in Bangalore also, and teaser was released. And only I could notice was the mother love towards the son. Nothing else in this. Only the mother's love. She was feeling so happy. Emotionally she was connecting and she was so happy. That happiness I pray God. I'm a devotee of Lord Shiva. So Om Namah Shivaya, I would like to say that, and I bless the success for this movie, as I have seen they working so hard behind this. May the God fulfill all your dreams. And Aarti ji, as a producer, I feel very happy about it, and you will rock. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you. I'd like to call Aditi Gaikwad, if she's here. Aditi and Sanket. And Dr. Swaroop Solanke. Okay. So thank you, producers and co-producers, for boosting our morale and showing us the way ahead. Thank you so much. One picture, please. सामने देखिए सर, सामने देखिए. जोरदार तालियां सभी. Mr. Pankaj Jaising to say a few words. ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. If this itself was so electrifying, you can imagine how the movie is going to be, and I myself am waiting to see it. Thank you so much. Thank you so much. I'd like to invite the Honorable Koti sir. एक बार जोरदार तालियां guys, come on. और जब भी मैंने इनको देखा है ना, तो गाय एकदम सिंपल, लेकिन जो इधर देखा वो ऐसा लगता नहीं है. मतलब एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. नाउ मैंने जब भी शुरुआत की थी, मैंने बोला कि तेरी मिट्टी आपने सुना है क्या, नज़म ये ऐसे बहुत सारे सॉन्ग, और उनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ी मेरे पास जोरदार तालियां. और को सर प्लीज. आणि सर्वांना डान्स आवडला का तो अर्चनामधला? कशी कोरिओग्राफी, प्रति ॲक्शन आता बघायची आपल्याला. मी जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूयात राहुल सरांसाठी. वाजला म्हणजे राहुल टोमरे सर. येस सर, प्लीज जोरदार टाळ्या राहुल सरांसाठी. सर ते अर्चना एकदा करायचे बरं का, मी आधीच बुकिंग करून टाकतो. येस, एकदा जोरदार टाळ्या. येस, बाजीराव मस्तानी नंतर हा जे काय पाहिले आम्ही सर, राहुल सर मनापासून त्याच्यानंतर गुरु ठाकूर सर या ठिकाणी आहेत का, ज्यांची लेखणी दमदारपणे बोलते. गुरु ठाकूर सर आय थिंक इट्स नॉट हिअर. यानंतर रवलीन सर, रवलीन मॅम, सॉरी शक्तिमान. एक बार जोरदार रवलीन मॅम के लिए.
now the BGM बादशाह, एक बार जोरदार था रवि सर। वो मूछे वाला डायलॉग परफेक्ट थे सर मूवी में, यहाँ पर मूछे वाला ही। And now I like to invite our costume designer Ashley. Yes, where is Ashley? Ashley Rebello. Aita? Ash. सुधीर, एशली है क्या वहाँ? Ash? Okay. Yes. Few words. सर पहले तो थोड़ा सा कुछ बातें हो जाए। Sorry, I'm not Hindi, only Telugu speaking. Listen. Just say anything. అందరికీ నమస్కారం, మీడియా వాళ్ళకి, మహారాష్ట్ర వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేవ్ గారు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన దానికి చాలా థ్యాంక్స్. చాలా వెరీ వెరీ లక్కీ. అలాగే దీనికి ఆర్కో గారు, ఈ బౌత్ ఆఫ్ యూ ఫిలిం ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సాంగ్స్ అండ్ రీ రికార్డింగ్ ఈజ్ గుడ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే మా రైటర్ వర్మ గారు కథా మాటలు ఇచ్చారు, చాలా బాగా ఇచ్చారు. తమ్మిరాజు గారు అండ్ యోగానంద్ గారు, రవి గారు, మా అసిస్టెంట్ అనిలు, వీళ్ళందరూ చాలా హెల్ప్ చేశారు. అలాగే ఆర్టిస్ట్ ప్రవీణ్ గారు, తేజశ్రీ గారు, అంటే మాకు లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ తేజశ్రీ గారు. పూజా మేడం, థ్యాంక్ యూ పూజా మేడం. ఈ ఆల్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ వెరీ వెరీ నైస్ సపోర్ట్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Yes, thank you now. Yes, thank you sir. Please. हेलो आप लोग जानते हैं इट्स एज ऑफ डिजिटल प्रमोशन, so this doesn't happen so often in most of our films. I think Ravi will agree that this is a rare event, and there was so much excitement, and I could see all the everything flying along with our action hero Vikramarka. I had a beautiful experience working on this film and being associated with such amazing artists. And getting to meet such amazing artists. I want to thank Koti Garu, and of course I've met everybody through my brother Dev Gill, who is like the most gentle giant, the gentle Punjabi, and on screen he transforms into this, this rebel of, and I love the trailer, and congratulations Aarti. This is the first time I'm seeing, I think we all are seeing, except their core team, and I loved it. So congratulations. I'm looking forward to Ravi's songs, which are already a big hit, and my songs are coming up, and I hope you all enjoy each step until the release of the film. Thank you. Hello everyone, how's everybody? So मैं हिंदी में बात करती हूँ. Firstly, I am very very thankful to the whole team of Aho Vikramarka. I'm really thankful to Orko, Dev. As Aarti said, Dev is a magician. उसने lawyer को singer बना दिया. So is Orko. And here I am. I'm really looking forward to your response to our song, the item number, which is yet to release. And thank you so much Orko. Thank you Dev. Thank you Aarti. Thank you Koti Garu. Thanks everybody. Thank you so much. मैम ये मतलब इसके बाद ये शो यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक बार उनके माइंड को यस एक सवाल ऐसे जहन में आया जी ये कौन सी फील्ड बेटर है, ये फिल्म वाली या फिर एडवोकेट? See, I will say one thing to it. Music is food for my soul. And बाकी काम है? क्या बात है, जोरदार तालियां. So thank you so much. Thank you. Yes, now yes sir. आइए सर आइए, एक बार जोरदार तालियां प्लीज. नमस्कार. आणि मला वाटतं यंदाचं जे वर्ष आहे ते राहुलसाठी फार थँक्यू. मी तर देवला थँक्स करणार आहे, कोटी सरला, कारण 10 वर्षापूर्वी एक पंजाबी पिक्चर केले होते आणि मी देवला कोरियोग्राफ केलं होतं. तर 10 वर्षापूर्वी त्यांनी बोललं होतं की राहुल मैं जब बड़ा करूँगा ना तुझे ज़रूर बुलाऊंगा. एंड थैंक यू देव फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. कमिटमेंट. नाउ टाइम फॉर BGM. एक बार जोरदार तालियां प्लीज.
सबको नमस्कार। बहुत साल से एक्चुअली महाराष्ट्र को थैंक्स बोलना चाहता था। 2 पॉइंट, जो मेरा गांव है बसरूर, उसका स्वतंत्र मिला शिवाजी से, सो आई थैंक टू। उसके बाद दूसरा, माई वाइफ इज मराठी, सो आज मेरे को एक सौभाग्य मिला कि 2 तरीके से थैंक्स बोलने के लिए। जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच। सो एक स्वतंत्र देने के लिए। उसके बाद मेरा लाइफ में जो भी जर्नी है, माई वाइफ इज द फर्स्ट, सो शी ओनली गिव द अपॉर्चुनिटीज, लाइक मेरा साथ में अभी तक शी इज सपोर्टिव टू मी। उसके बाद देव जी, सो ये किसी को भी मना लेते हैं एक्चुअली, ही स्माइल एंड सो। उसके बाद जब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया, सो उस टाइम मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट था। सो उसके बाद मैंने बहुत, मैं जो भी मूवी करता हूँ सो टाइम लेके करता हूँ, तो आप टाइम देंगे तो मैं करूँगा करके। उसके बाद मेरा पार्ट था ओनली बैकग्राउंड स्कोर। मैं उस टाइम में सॉन्ग करने का मूड नहीं था, इतना काम था एक्चुअली। स्लोली ही हैज गिवन ऑन टेक्स्ट, सर कैन यू गिव 1 सॉन्ग। सो एक गाना हुआ, उसके बाद सर अनदर 1 सॉन्ग। सो ही कैन कन्वे एनीबडी, इसका वो इनोसेंस। मैं जब भी इनसे मैं बात करता हूँ, मैं उनसे बात कर, आप ना ऐसा टोन में नहीं है ये, प्लीज टॉक इन स्ट्राइट। सो जो भी काम उनको चाहिए, सो ही कैन कन्वे एनी पर्सन, एंड वो हार्टली बोलते हैं, एक्चुअली हार्टली बात करते हैं। सो दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। सो उसके बाद प्रोडक्शन, आई थिंक माई एक्सपीरियंस, आई हैव डन अराउंड मोर देन 140 मूवीज बैकग्राउंड स्कोर। सो अराउंड 5,600 songs I have done as a programmer. So till my experience, I have never seen this type of guy. So he's very, उनको क्या चाहिए उनको पता है। उसके बाद एक्सपेशली डायरेक्टर। So मैं जो भी मूवी करता हूँ, so I am very particular about the editing and जो भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट में इंटरफेस करता हूँ, ताकि ये मूवी इट हैज़ टू बी साउंड, वो बात करना चाहिए बाद में। So इसलिए every department we have discussed, we have edited, we have everything we have done for good. So ताकि आप थिएटर में देखने के वक्त आपको पता चले कि it's a good movie. So I hope and I sure that you will be enjoying the movie in theater, because we have tried different sound work in. और उसके बाद मैडम का परफॉर्मेंस, उसके लिए मैं उनका परफॉर्मेंस का एक आता है सेकंड हाफ में, सो उसके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ एक्चुअली। तंदानी नाने ताने तंदानो ताने नाने नो, ए तंदानी नाने ताने तंदानो ताने नाने नो, ए तंदानी नाने ताने तंदानो ताने नाने नो, ए तंदानी नाने ताने तंदानो ताने नाने नो। क्या बात है, क्या बात है। उनका परफॉर्मेंस देख के मैंने कोटी सर से बताया, सो वी हैव सेलेक्टेड वंडरफुल आर्टिस्ट। उसके बाद क्लाइमैक्स फाइट में सर ने तो फाड़ दिया पूरा। सो गुड एंटरटेनर। उसके बाद किसी भी तरह का लैग मूवी में इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, ऐसे पूरा लैग निकाल के एंड टाइट फिल्म यू हैव गोइंग टू सी इन थिएटर। थैंक्स अ लॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्शन हाऊस, थँक यू व्हेरी मच। थँक्यू सो मच सर। का जोरदार ताली, फार वेगळा मान असतो, पण नेमकं श्रावण आहे आता। सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं श्रावण के बाद आइए। सर रवि सर श्रावण के बाद आइए, बहुत अच्छा रिवाज होता है हमारे यहाँ पे, कोमड़ी वडे वगैरह सब। अनिल सर वेर आर यू? अनिल सर आहेत ना? येस येस प्लीज अनिल सर. येस एकदा जोरदार टाळ्या अनिल सरांसाठी वाजल्या पाहिजेत. आणि तुम्ही सगळ्यांनी मुळशी बटन पाहिलाय का? पाहिलाय का?
जोरदार टाळ्या त्यातीलच आमदार साहेब आणि अहो विक्रमार्का जोरदार टाळ्या मिलिंद दस्ताने सर. व्हेर इज मिलिंद सर? या चित्रपटातून ज्या सुंदर डेब्यू करताय जोरदार टाळ्या पूजा मॅम साठी वाजल्या पाहिजेत. त्या पण गेल्या येस मॅम आई स्टेजवर गेली. महाराष्ट्रातील लोक सजा खुर्च्याच सोडत नाही बघा. येस नाउ आई लाइक टू इनवाइट एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने बहुत सारी तारीफ यहाँ पर हमने सुनी है और इस टीजर में देखी है. जिच्या नावामध्ये तेज आहे आणि अभिनयाच्या माध्यमातून ते प्रत्येकाच्या घरोघरी पोहोचतंय. जोरदार टाळ्या इवरवली तेजस्विनी पंडित. नाउ द पॉपुलर विलन फ्रॉम कन्नड़ा प्रभाकरन सर यहाँ पर है. प्रभाकरन सर. आणि आता एका फार स्पेशल व्यक्तीला बोलवायचे. नावामध्ये असणार प्रवीण चित्रपट सृष्टीला दिलं. आमच्या पुण्याचं महत् भाग्य आहे. ज्या पुण्यामध्ये आम्ही राहतो तिथे पुणे म्हटल्यावरती संस्कृती नाट्यछटा चित्रपट म्हणल्यानंतर एक बरोबरीचं समीकरण झालंय. ते म्हणजे वन ओनली शेतकऱ्याचं पोर प्रवीण तरणे साहेब. टाळ्या वाजल्या पाहिजे. आणि अर्थात मगाचपासून ज्या व्यक्तीविषयी गप्पा सुरू आहेत माझा छोटासा अनुभव सांगतो. जब मैं देव सर से मिलने गया था घर पे तो लाइक से अरे हाँ आई आना भाई बैठना भाई आना भाई बैठना भाई. मी पण म्हटलं अरे इतका क्या मी बहुत बड़ा स्टार मेरे सामने खड़ा है. आणि गेलं तर प्रवीण सर डायरेक्ट जेवायलाच बसवलं. अरे बैठना बैठना आणि काय साईड डार्लिंग क्या चाहिए तो बोला आज अपनी तो निकल पड़ी. एक बार जोरदार तालियां. द मैन ऑन ऑलवेज हम्बल देव सर. Yes. Few words. Let's start from the Pooja ma'am. Hello, good evening everyone, and thank you for coming here and joining us for this special trailer launch. ये कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है तो हमको पता है कि उसके पीछे पूरी टीम वर्क की बहुत हार्ड वर्क होती है और स्पेशली इस टीम के जो कैप्टन हैं हमारे डायरेक्टर सर और देव, इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है. मैंने तो सिर्फ एक गाना किया है फिल्म में और जैसे कि आप सबको बताया अभी थोड़ी देर पहले पुणे में शूट हुआ है. ये एक हम लोगों ने शायद फरवरी या जनवरी में शूट किया था लास्ट ईयर और मैं तब से वेट कर रही हूँ. देव को पूछ रही थी कब रिलीज़ हो रहा है गाना. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग एंड ही इज़ लाइक कि होगा आई विल टेल यू. एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड. I can't wait to share the song, the movie with you guys. And हमने शूट किया था बहुत ठंड में. मैंने भी बहुत 4 रात शूट किए बैक टू बैक और भीग के शूट किया था. बहुत मज़ा आया ठंडी में. बट हर एक शॉट के बाद मैं देखती थी कि कोटी सर और देव के चेहरे को, क्योंकि वो लोग मॉनिटर पे बैठ के देखते थे, कुछ तो डिस्कशन होता था. मुझे नहीं पता क्या. एक और करेंगे, बहुत अच्छा था, एक और करेंगे. तो ये जो परफेक्शन की जो खोज होती है ना वो इंसान को कभी सेटिस्फाई होने नहीं देता है. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो लकी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑर्को ऑल्सो. ऑर्को ने मुझे फ़ोन किया कि आई एम डूइंग एन आइटम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, ही सेड. And I'm thankful to Dev that he chose me, he gave me this opportunity to perform in the song and I hope you guys will like it and I really wish all the very best because मुझे पता है, मैंने खुद भी देखा है कि बहुत मेहनत की है इन्होंने. तो शूट नहीं किया पर वो 4 रात ये भी बैठे थे सेट पे, मैम भी बैठी थी सेट पे, इतने ठंड में बच्चे भी आए थे. एंड आई रिमेंबर each and everyone in the unit have put their blood and sweat in the film. So please आप लोग आइएगा, support कीजिएगा and please movie देखिएगा. I'm sure you guys will be entertained. Thank you so much. Yes, thank you. यानंतर अनिल सर. हिंदी, मराठी, आता भारताच्या प्रादेशिक 5 भाषा त्या चित्रपट कसा अनुभव आहे काय सांगाल? मला खूप चांगला अनुभव आहे. देव सरांचे मानतो मला संधी दिली. तुम्ही सगळ्यांनी असं नाही. जोरदार टाळ्या तेजस्विनी मॅम प्लीज. फ्यू वर्ड्स. उपस्थित सर्वांना नमस्कार. जेवढे प्रोड्युसर्स आज इथे हजर आहेत, आरती मिश्राजी, कुलकर्णीजी, UFO, पॅनोरमा, आय थिंक देव तर आहेच प्रोड्युसर पण आरती माझ्यासाठी जास्त प्रोड्युसर आहे. तर पण आणि सगळ्यात महत्त्वाचा माणूस या टीमचा म्हणजे कोटी गारू.
मला वाटतं की मी देववरती नंतर येणार आहे, पण कोटी गारूविषयी बोलते. कुठलाही प्रोजेक्ट करतो आपण जेव्हा, किंवा कुठली फिल्म आपण जेव्हा बघतो, आता खरं तर लँग्वेज बॅरियर राहिलेलं नाही आहे, कारण आपण सगळ्या प्रकारचे सिनेमे बघतो, सगळ्या भाषांमधले सिनेमे बघतो. पण मला आनंद या गोष्टीचा, या टीमबरोबर काम करताना या गोष्टीचा आनंद जास्त झाला की कोटी गारूंची ही लँग्वेज नाही. म्हणजे आमचा एक टेक तेलुगूमध्ये असायचा, एक टेक मराठीमध्ये असायचा. त्यांना फक्त त्यातले इमोशन्स कळत होते, त्यांना त्यातले एक्सप्रेशन्स कळत होते. म्हणजे जेव्हा जसा प्रॉब्लेम मला तेलुगूमध्ये संभाषण, कुठलेही संवाद फेकण्यामध्ये झाला, तसा प्रॉब्लेम कदाचित त्यांनाही मराठीमध्ये असेल, कारण त्यांना अजिबातच ही लँग्वेज येत नाही. पण आमच्या क्षेत्राची गंमतच ही आहे की आमच्या क्षेत्रामध्ये ना इमोशन्सवरती ही अख्खी इंडस्ट्री, म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टी जेवढी चाललेली आहे ही इमोशन्सवरती चाललेली आहे. आणि हा चित्रपटसुद्धा मराठी, तेलुगू आणि इतर 4 भाषांमध्ये रिलीज होणार आहे. तर तुमची जी कुठली भाषा असेल त्या भाषेमध्ये तुम्ही हा चित्रपट पाहा अशी मी तुम्हाला विनंती करते. आणि देवविषयी सांगायचं तर मला कौतुक या गोष्टीचं आहे की देव हा पुण्यात वाढलेला मुलगा आहे, महाराष्ट्रातल्या भूमीतला मुलगा आहे. आणि कदाचित तो ही फिल्म फक्त तेलुगूमध्ये करू शकला असता, कारण याचे दिग्दर्शक स्वतः तेलुगू आहेत. पण किंवा अजून कुठल्या लँग्वेजेसमध्ये करू शकला असता. पण तो पुण्यात वाढल्यामुळे, तो महाराष्ट्रात वाढल्यामुळे त्याला कुठेतरी असं वाटलं की मी महाराष्ट्राचं काहीतरी देणं लागतो, आणि म्हणून त्यांनी हा चित्रपट मराठीमध्ये सुद्धा केला. त्याच्यामध्ये खूप मराठी कलाकारांना काम दिलं, संधी दिली, आम्हाला त्याच्यामध्ये आत्मसात केलं. तर याबद्दल देव तुझे खूप खूप आभार आणि खूप साऱ्या शुभेच्छा. मी आणि प्रवीण दादांनी आय थिंक पहिल्यांदाच या चित्रपटात एकत्र काम केलं. इंडस्ट्रीत आपण असतोच, म्हणजे कायम भेटतच असतो, पण काम करताना या माणसाबरोबर मला जी मजा आली, आणि त्याच्यानंतर डबिंग करताना सुद्धा या माणसानी माझा परफॉर्मन्स इतका एलिव्हेट केलेला आहे फिल्ममध्ये. तर आज जे काही स्टेजवरती 2-4 शब्द माझ्याविषयी बोलले जात आहेत आणि बोलले गेलेत, त्याच्यात खूप श्रेय प्रवीण दादाचं आहे. तर थँक्यू सो मच दादा. आणि कोटी गारू सर, मैं क्या बोलूँ आपके बारे में. म्हणजे लिटरली मला असं वाटतं की मूर्ती लहान कीर्ती महान हे करेक्ट यांना शोभणारं वाक्य आहे. जोरदार झालं. अत्यंत सालस, अत्यंत साधेपणा, म्हणजे अख्ख्या क्रूमध्ये मला असं वाटतं आमच्याकडे खूप टेक्निशियन्स साऊथमधनं आले होते, आणि म्हणजे लिटरली इतका साधेपणा या लोकांमध्ये असतो, आणि वेळेच्या बाबतीत इतकी वेळ व्यवस्थित पाळली जाते. हे खरंच आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही शिकावं अशी गोष्ट होती, आणि आम्हाला खूप मजा आली काम करताना. ह्याच्याबद्दल तुम्ही महाराष्ट्रात आलात, मराठी चित्रपट बनवलात, याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आणि तुम्हाला महाराष्ट्रामधल्या एका मुलीकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि यानंतर आपल्या सर्वांच्या भेटीला येतोय असुरा. जोरदार टाळ्या. प्रवीण सर प्लीज. म्हणजे प्रवीण सर, आम्ही तुम्हाला असं तेव्हा बघितलं, म्हटलं अरे हे तेच प्रवीण सर आहेत का, ते म्हटले शेती राखायची वगैरे, आणि इथं भैया प्लीज. नमस्कार. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सगळ्यात मोठी गोष्ट काय केली या मंडळींनी, तर चित्रपट भारतातल्या 5 भाषांमध्ये येतोय, पण त्या चित्रपटामध्ये हिरोचं जे आराध्य दैवत दाखवलं ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्रातून पार तंजावरपर्यंत संपूर्ण साऊथ बेल्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य आहे, शहाजी महाराजांचं कार्य आहे. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य काय असं जर कोणी विचारलं तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, या चित्रपटाला मातीचा वास आहे. या चित्रपटाला मातीचा वास आहे यासाठी की मातीचं म्हणणं काय असतं, माणसांचं म्हणणं काय असतं आणि मातृत्वाचं म्हणणं काय असतं, या चित्रपटामध्ये अत्यंत ताकदीनं आमच्या कोटी गारूंनी दाखवलं. तर कोटी गारू म्हणजे त्यांची बाकी ओळख माहीत नसली तरी सांगतो की राजामौली सरांबरोबर त्यांच्या पहिल्या पिक्चर पासून
त्यांचे असोसिएट डिरेक्टर राहिलेले कोटीगारू, बाहुबलीचे असोसिएट डिरेक्टर। आणि या कोटीगारूंनी हा सिनेमा तितक्याच ताकदीनं पेलला, त्यामुळे मी या माणसाचे आभार मानेल आणि या दोघांचे आभार यासाठी मानेल की मी याच्यात विलन आहे। विलन शब्द उच्चारला लाईटच गेली। काय काय करतो आणि साऊथला विलनला तर खूप महत्व। तर मला पहिलाच सीन या दोघांनी ऐकवला की तो असुरा हातात असं ते काय ते सिगरेट सारखा धूर हुक्का पीत आणि एका महिलेबरोबर बसलेला असतो। तर मी याला म्हटलं अरे देव, तर हे काय मला जमायचं नाही बाबा। तो म्हटलं म्हणजे? अरे म्हटलं कसं आहे, माझा मुळशी पॅटर्न असेल, आंबेरराव असेल, देऊळबंद, मी सिनेमामध्ये सिगारेट किंवा दारू असं दाखवत नाही। माझ्या कुठल्याच सिनेमात सिगारेट दारू नसते, कारण ते आपल्याकडे ते मुलांवर खूप ते मुलं ते उचलतात ना। फक्त धर्मवीर मध्ये दिघे साहेबांना दाखवली कारण ती बायोपिक होती, त्यांच्या हातात सिगारेट नेहमी असायची। तर माझं ऐकलं त्यांनी आणि विलन विदाऊट दारू विदाऊट सिगारेट, कारण मी स्वतः निर्व्यसनी आहे, तर मी म्हटलं मी हे प्रमोट करणार नाही। आणि त्यांनी ते मान्य केलं आणि ते ऐकून विलन दिसेल तुम्हाला कसा असतो। मला तेजस्विनीला एकदा असं ढकलून द्यायचा सीन होता। अरे म्हटलं ती अभिनेत्री म्हणून गोड आहेच, पण ती माणूस म्हणून किती चांगली आहे माहितीये का तुम्हाला? तर मी तिला म्हटलं नाही सर, वो मारना तो पडेगा सर। आणि मग मी जीवावर उदार होऊन एकदा दिलं तेजस्विनीला ढकलून। त्यामुळं विलन केलाय, राक्षसी वृत्तीचा विलन केलाय, मुळशी पॅटर्न मध्ये पण मी केलाय, पण मला ते नवीन नव्हतं। मी त्याच तालुक्यातनं आलेलो आहे, माझं गावच आहे मुळशी, त्यामुळं तसंच करायचं होतं मला, पण हे काहीतरी वेगळं आहे। या माणसासाठी हा सिनेमा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी माणसाने बघा। हा फक्त तेजस्विनी वाढलेला नाही महाराष्ट्रात, हा जन्मलाच पुण्यात, हा पुणेकरच आहे ओरिजिनल। म्हणजे फक्त हा कुणाला टोमणे मारत नाही, कुणाची खेचत नाही, तरी हा बाय बर्थ आणि वृत्तीने पण पुणेकर आहे। आणि त्याच्या पुणेकर असण्याचा मला अभिमान आहे, कारण साऊथचे एवढे मोठे दिग्गज इथं बसरूर सर असतील, अर्को असतील, कोटीगारू असतील, ही सगळी मंडळी साऊथ वरनं पुण्यात शूटिंगला यायची। हा म्हटला मी शूटिंग महाराष्ट्रात करणार, या सिनेमाचं शूटिंग मला महाराष्ट्रात करायचंय, ज्या पुण्यात मी जन्मलो त्या पुण्यात करायचंय। तर याची ही जी भावना आहे ना, भावना स्वतःच्या शहराबद्दलची, महाराष्ट्राबद्दलची, या भावनेसाठी देवगीरचा सिनेमा प्रत्येकाने फक्त आणि फक्त थिएटरमध्ये जाऊन पाहायचा, कारण 40 आणि 50 कोटीचा सिनेमा महाराष्ट्रात मराठीत करायचा ही खूप मोठी गोष्ट आहे, आपल्या सिनेमाला पुढे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे। त्यामुळे देव समस्त मराठी प्रेक्षकांच्या वतीनं सांगतो, तुझा चित्रपट मराठी प्रेक्षक डोक्यावर घेतील, कारण आम्ही साऊथवर का प्रेम करतो? कारण साऊथची माणसं आपला देव, आपला देश, आपला धर्म, आपली परंपरा ही खूप मोठ्या ताकदीनं मानतात। तू सुद्धा त्याच ताकदीने मानलंय, त्यामुळं देवला आणि संपूर्ण आमच्या टीमला अगदी मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। सर एक छोटासा प्रश्न बघा, आपण पाहिलं तर इतकं ते ड्रेसअप आणि कॉस्ट्युम किती साधारण वेळ लागायचा आणि काय मेहनत त्यासाठी? एक तर मला दाढी येत नाही, म्हणजे माझी खूप इच्छा आहे की मला जर दाढी असती ना, मी अशी पूर्ण ठेवली असती, म्हणजे मी लहानपणी पेनाने काढायचो दाढी, का तर मला ते नाही का दाढी मिशा हवी, तर देवाने मिशा दिली, केस दिले, पण दाढी नव्हती दिली, पण ती इच्छा देवाने या सिनेमात पूर्ण केली। त्यामुळे देव खूप खूप धन्यवाद। खूप भारी कॉस्ट्युम आहेत, ते खूप जड होतो ते शूज, आणि खूप वरनं उड्या मारायच्या होत्या। साऊथ इंडस्ट्री निम्म्या वेळा जमिनीवर आणि निम्म्या वेळा हवेतच असते ते रोप फायटिंगला, त्यामुळं ते मी एन्जॉय केलं आणि मी दिसतोय पण छान। हा म्हणजे माझी आई मला म्हटली तुला दाढी असते तर तू असंच दिसला असता, हा त्यामुळे धन्यवाद। आणि बघा सर, ते शेवटी लहानपणी म्हणतो ना आपण, ते पेनाने काढली होती दाढी,
आज देवाच्या मनात आलं, देवाने देऊन टाकली दाढी. येस, यानंतर प्लीज विनंती आहे देवगिल सर, एकदा जोरदार टाळ्या सरांसाठी. नाही असं नको, एक काम करू आपण, मोठ्यानं अहो विक्रमार्क म्हणून मध्ये बोलतील, चालेल का? चलो 1 2 3 अहो. थैंक यू. सबसे पहले सबको मैं यहाँ थैंक यू कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम ही नहीं होता. सो थैंक यू उसके लिए. मैं पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. मेरे माता पिता ने मुझे जन्म पूना में दिया था और मेरे जो गुरु है SS राजमौली, उन्होंने मुझे नाम हैदराबाद में दिया है. तो ये मेरी शुरुआत है मगधीरा से. ये हमारे डायरेक्टर पेटा कोटी, मैं इनको 14 साल से जानता हूँ, फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स. और हम लोगों का एक अलग सा रिश्ता था. और बेसिकली जब आप साउथ में काम करते हो तो नॉर्मली देयर इज वन रूल ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड हैविंग एन एसोसिएशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो जो भी आज तक मैंने जिनके साथ काम किया, आज तक वो सब लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं. तो मैं मेरे साउथ की एंटायर इंडस्ट्री और मेरे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को थैंक यू कहना चाहता हूँ. बिकॉज ऑफ देम आई एम व्हाट आई एम टुडे. और आई जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल नोट. आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स मिस्टर अश्विनी कुमार मिश्रा. ये मुझे, इनके बगैर ये सपना अधूरा रहता था. मिश्रा जी, आई लव यू. बिकॉज ये जो जर्नी थी एक बहुत कठिन जर्नी थी, टू फाइट अगेंस्ट a system, like, you know, if I'm working in Telugu industry, I had to do something in Marathi, which we didn't know much about Marathi cinema. So मिश्रा जी ने मुझे उस चीज़ में सपोर्ट किया, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और सबसे पहले आई वांट टू से राजमौली साहब को जब हमने आइडिया दिया तो उन्होंने कहा कि तेरी माता जी का सपना, यू शुड डू इट. और बिकॉज ऑफ माई मदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मेरे महाराष्ट्र में और मेरे ऑल दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ महाराष्ट्र के दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. थैंक यू मम्मी, बिकॉज ओनली ऑफ यू आई कुड मेक दिस. एंड आई वांट टू थैंक मिहिर, आई वांट टू थैंक समीर जी. Thank you very much for always being there with us. Mr. Vijay, Walk Wizard Entertainment, विजय जी मेरे हनुमान हैं. कभी भी मुझे कुछ हेलो, थैंक यू विजय जी. आई जस्ट टेल यू, मैं ये जर्नी की कहानी सुनाता हूँ. सबसे पहले जब हम लोगों ने ये लिखा था एंड आई वांटेड टू डू अ मराठी फिल्म, तो सबसे पहले प्रवीण जी हाथ जोड़कर थैंक यू. विदाउट यू ये फिल्म नहीं हो सकती. इन्होंने जो लिखा है, दमदार बोलते ना, एक साथ दमदार एक्शन तो कुछ नहीं, ये आदमी ने वो सब किया है. मराठी इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. वो जो हमारे भाई सलीम भाई बोलते हैं अंगार अंगार, एक्चुअल अंगार ये इंसान है. जब वो लिखता है उसमें सिर्फ आग निकलती है. तो प्रवीण जी, विदाउट यू ये जर्नी इनकम्प्लीट है. थैंक यू. और हमेशा एक छोटा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना. और इस फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट, पूजा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हीरो की माँ, और उसको कास्ट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. कुछ लोगों ने बोला था वील हैव एक्ट्रेस फ्रॉम हैदराबाद, कोटी सर ने कुछ ऑप्शंस किसी ने दिया फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम चेन्नई, बिकॉज इट वाज अ पैन इंडिया फिल्म. बट it was my dream
जो भी एक किरदार प्ले करेगा वो मेरी मिट्टी की होनी चाहिए, महाराष्ट्र की। और मुझे वो मौका मिला, हमारी तेजस्विनी जी, कैन आई होल्ड योर हैंड प्लीज कम अप। आई वांट टू थैंक यू बिकॉज वो जो किरदार है बहुत खतरनाक किरदार था, उसका लुक एंड आई डोंट नो इफ यू कैन वॉच हर, शी हैड टू गो टू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शी हैड टू बी इन मड, जो उन्होंने कभी नहीं किया था, बहुत मेहनत करना पड़ा था एंड शी हैज किल्ड इट। तेजस्विनी जी थैंक यू, आशीर्वाद दो, थैंक यू वेरी मच तेजस्विनी जी। आई ऑल्सो वांट टू से these are the actors, please brother, you know they didn't ask us हमारा रोल क्या है, they said भाई we are working with you, but मैं इसी को नहीं, but बहुत सारे एक्टर्स हैं from महाराष्ट्र, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा मराठी एक्टर्स ने हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है, छोटा रोल है, बड़ा है, they said we want to be part of you, so that's how the journey started। अब मैं शुरू करता हूँ पहले हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर औरको मुखर्जी से। औरको थैंक यू ब्रदर, ही नॉर्मली स्पीक्स इन इंग्लिश बट मैं हिंदी में कहूँगा कि इट वाज लिटिल डिफिकल्ट जब हमारे कोटी गारू और औरको की मीटिंग हुई। ये साउथ और ये लाइक कैलकाटा पूरा कुछ रॉन्ग किए चल रहा था, बट इस कॉन्वर्जेशन में दे क्रिएटेड अ मैजिक जो बहुत जल्द आप करेंगे। थैंक यू ऑर्को फॉर बिलीविंग मिस्टर कोटी गारू एंड देवगिल प्रोडक्शंस, एंड आई ऑल्सो वांट टू से वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर रवि बसरूर, ही इज सो बिजी। जब सल्लार, KGF, अब कोई भी बड़ी फिल्म लो, जब वो इंसान काम करता है 1 साल तक किसी को नहीं मिलता। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी माँ का आशीर्वाद था कि मैं उनको मिल पाया सिर्फ 5 मिनट के लिए। उस 5 मिनट से मैंने उनके 500 मिनट ले लिए। एंड रवि जी, आई जस्ट वांट टू टेल यू थैंक यू रवि जी, विदाउट यू दिस फिल्म वुड नॉट बी you know what it is, so thank you for believing Mr. Koti Garu and Devgil Productions. Thank you Ravi ji. I also want to tell Satish Garu, he is a fight master. आपने पुष्पा देखा है? वो हमारी फिल्म का फाइट मास्टर है। ही इज अनदर मैडमैन। ये पिक्चर में ना बेसिकली सब पागल लोग ही भरे, तो ही ये सिनेमा में आपको अच्छा लगेगा। जैसे प्रवीण सर, ही इज अनदर मैडमैन। मैडमैन मींस पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। सतीश गारू वो फाइट मास्टर, वो अलग अपनी धुनकी में, ये ऐसा करना, ऊपर से मारना, ये करना है, पर हमारी हड्डियां टूट गई थी, बट ही क्रिएटेड द मैजिक। सतीश गारू थैंक यू सर। I also want to thank Mr. Rahul, who is a choreographer. Rahul, thank you darling. मेरा भाई है, उसने गाना नहीं सुना, सिर्फ इतना बोला भाई मैं तुम्हारी फिल्म कर रहा हूँ। I love you Rahul and thank you very much. I want to thank our art director Karthik. Karthik है क्या? अच्छा, he is not there. बहुत सारे technicians है, our writer and everyone. But I want to tell the entire team, co-producers, producers, actors, spot boys, जितने भी हैं हमारे देवगिल प्रोडक्शन से, जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, I want to thank you again. Thank you very much. Love you all. जय माता दी, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या वतीनं एक सत्कार या ठिकाणी सर्वांचं होतोय. सर थोडा टाइम पटपट या पटपट. आशीष शर्मा यांच्या कन्या या ठिकाणी आहेत. नंदिनी शर्माजी. दीदी वेळ आपल्याकडे कमी राहिला. येस प्लीज. येस आता फक्त स्टारगट समाज स्टेज, बाकी सर्व खाली आहे प्लीज. देव सर अँड सर सेंटर में.
चलो जो भी सवाल पूछना चाहते 1 to 1 करेंगे। साउथ का कल्चर और महाराष्ट्र कल्चर